حمزہ شہباز ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں پیش، نیب کی ٹیم بھی ریکارڈ سمیت عدالت میں موجود۔ کمرہ عدالت میں وکلاء اور کارکنوں سے بھر گیا، سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات۔ غیر معمولی حالات سے نمٹنے کے لیے پولیس لائنز میں پولیس فورس الرٹ، قانون ہاتھ میں لینے والوں کو فوری گرفتار کرنے کا حکم۔ ایف آئی اے کی کارروائی، ای سی ایل میں نام شامل ہونے پر رمضان شوگر ملز کا مینیجر جہاز سے آف لوڈ، نیب کے حوالے کر دیا۔ محمد مشتاق پی آئی اے کی پرواز کے ذریعے لاہور سے دبئی جا رہا تھا۔ جعلی اکاؤنٹس کیس میں اہم پیش رفت، 2 خواتین ملزمان کی احتساب عدالت سے گواہ بننے کی درخواست۔ کرن اور نورین کا کہنا ہے کہ ان کا نام ملزمان میں شامل ہے لیکن وہ گواہی دینے کو تیار ہے۔ آصف زرداری اور فریال تالپور کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد، تمام ملزمان کو آئندہ سماعت 16 اپریل کو پیش ہونے کا حکم۔ پیپلز پارٹی کی 2 کارکن خواتین گرفتار۔ محسوس یہ کر رہے ہیں کہ یہ وہی جگہ ہے جو آئے تھے پہلے، جہاں پہ گزرے تھے ہم جہاں سے گزرے تھے۔ ایک عرصے بعد احتساب عدالت میں آنا کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ صحافی کا سوال، یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے۔ آصف علی زرداری کا جواب، صحافی نے پوچھا یہاں سے کہاں جائیں گے؟ سابق صدر نے کہا یہاں سے وہیں جائیں گے جہاں پہلے گئے تھے۔ نیب کی بادشاہت ہے، وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی پامال کر رہی ہے۔ گواہان اور ملزمان کی جان کو خطرہ ہو تو کیس ایک صوبے سے دوسرے میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ لطیف کھوسا کی میڈیا سے گفتگو، قمر زمان قائرہ کہتے ایف آئی اے کی تفتیش کو ریفرنس تسلیم کیا گیا۔ عدالت نے نیب کو باقاعدہ ریفرنس دائر کرنے کی ہدایت کی۔ عدالت نے نیب کی کارکردگی پر اظہار برہمی بھی کیا۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں واقع فیکٹری میں گڑھے میں گر کر 3 مزدور جاں بحق، 1 شدید زخمی، لاشیں اور زخمی ہاسپٹل منتقل۔ ایس ایس پی ملیر کے مطابق فیکٹری کے گڑھے میں 1 مزدور گرا، بچانے کی کوشش میں دوسرے مزدور بھی گڑھے میں گر گئے۔ فیکٹری سیل کر کے تحقیقات شروع۔ لاہور میں بیوی پر تشدد کرنے، سر مونڈنے کا کیس، جوڈیشل میجسٹریٹ نے ملزمان کی درخواست ضمانت خارج کر دی۔ ملزم میاں فیصل نے اپنی بیوی کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا، مدعیہ اسما عزیز کے وکیل کا موقف۔ راجن پور میں کچے کے علاقے میں رینجرز، ایلیٹ فورس اور پولیس کا مشترکہ آپریشن دوسرے روز بھی جاری۔ کچے کے تمام زمینی راستے سیل، لٹھانی گینگ کی جانب سے فائرنگ کا سلسلہ بند، گینگ کے اراکین مارے گئے یا زخمی، فورسز کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ وزیر خزانہ اسد عمر کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس، 2 نکاتی ایجنڈے پر غور جاری۔ پاکستان سٹیل ملز کی بحالی کے پلان کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے۔ ای سی سے منظوری ملنے پر منصوبے کو کابینہ میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے بلدیاتی نظام سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی شریک ہوں گے۔ عثمان گزار پنجاب کے نئے بلدیاتی نظام پر بریفنگ دیں گے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا قبائلی اضلاع میں تعینات خاصادار اور لیویز فورس کو پولیس میں ضم کرنے کا اعلان، نوٹیفیکیشن جاری۔ محمود خان کا کہنا ہے کہ کسی کو بے روزگار نہیں کیا جائے گا۔ 28,000 خاصادار اور لیویز اہلکار اب پولیس کا حصہ ہوں گے۔ پشاور میں فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، مضر صحت مسالہ جات بنانے والی فیکٹری سیل، مالک گرفتار۔ بھاری مقدار میں چوک کر مضر صحت رنگ اور 1600 لیٹر باسی تیل قبضے میں لے لیا۔ کوئٹہ میں ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج، سرکاری اسپتالوں کی او پی ٹیز بند، مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ ڈاکٹرز کے تحفظ کے لیے جامع سیکیورٹی ایکٹ لانے پہ ضابطگیوں میں ملوث افسران کے خلاف کارروائی، مطالبات تسلیم کرنے کا مطالبہ۔
लाहौर में पुलिस के इश्तिहारियों के खिलाफ मुहिम नाकाम। एक कैटेगरी के सिर्फ 2 दर्जन इश्तिहारी गिरफ्तार किए जा सके। 20,241 खतरनाक इश्तिहारी शहरियों के लिए दहशत की अलामत बन गए। पाकिस्तान का खित्ते को अमन का गहवारा बनाने के लिए इकदाम। 100 भारतीय माहीगीरों को आज वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुक्काम के हवाले किया जाएगा। माहीगीरों को लाने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 2 घंटे ताखीर का शिकार। 2:30 बजे लाहौर पहुंचेगी। मकबूजा वादी में हुर्रियत रहनुमाओं पर अरसाए हयात तंग कर दिया गया। दहशतगर्दों की माली मुआवनत के झूठे इल्जामात पर मीरवाइज उमर फारूक भारतीय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नई दिल्ली में पेश। भारतीय एजेंसी 2 बार पहले भी हुर्रियत रहनुमा को तलब कर चुकी है। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद का कहना है कि दोहा में तालिबान से मुलाकात में अफगान मुआशरे का हर फर्द शरीक होगा। तालिबान और अफगान हुकूमत ने दोहा मुज़ाकरात में शिरकत की तस्दीक कर दी। क्रिस्टियन माइकल नील्सन ने अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी की सेक्रेटरीशिप छोड़ दी। क्रिस्टियन नील्सन के ओहदा छोड़ने का ऐलान सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में किया। कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन कमिश्नर कायम मकाम अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी मुकर्रर। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रिमझिम ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार। गर्मी की शिद्दत में कमी। वाक़ई महकमा मौसमियात की मकरान की साहिली पट्टी पर गर्द आलूद हवाएं चलने। मुल्क के कई इलाकों में बारिश की पेशगोई। खिलाड़ियों को हसना की दरखास्त मुस्तरद करते हुए 16 अप्रैल को दोबारा तलब किया है। इस बारे में भी आपको तफसीलन आगाह करेंगे, लेकिन अभी आपको एक अफसोसनाक खबर बताएं। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जिला मोहम्मद में पोलियो टीम पर फायरिंग हुई है, जिसके नतीजे में यूनियन काउंसिल पोलियो ऑफिसर वाहिद खान जाँ बहक हो गए। सरकारी जराये के मुताबिक वाहिद खान को कैचअप पोलियो मुहिम के दौरान नामालूम अफराद ने निशाना बनाया। वाक़े के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके का मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन किया, जबकि मशकूक अफराद से पूछगछ अभी भी जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जिला मोहम्मद में पोलियो टीम पर फायरिंग हुई। इसी पर मजीद बात करेंगे लिहाज अली से। लिहाज, अभी तक की तहकीकात क्या बता रही है? फायरिंग किसकी जानिब से हुई? जी, जिस तरह भी आपने बताया, मोमन एजेंसी की जिले इंतजामिया के मुताबिक ये आटू खेल का इलाका था। वहाँ पर पोलियो कैंपेन के बाद जो कैचअप कैंपेन होती है, घर घर जाकर जो रिफ्यूजल केसेस होते हैं उनकी बाकायदा तौर पर उनको राजी करने की कोशिश की जाती है। और इसी केसेस के दौरान नामालूम अफराद ने यूनियन काउंसिल पोलियो वर्कर वाजिद मोमन पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो जख्मी हुआ। गलानी जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है मोमन का, वहाँ पर उसको लाया गया और वहीं पर वो जख्मों की साथ लगाते हुए चल बसा। इस वाकई के बाद जो पॉलिटिकल इंतजामिया है उन्होंने और इसकी डीवी और खासदार फोर्सेज उन्होंने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर रखा है। जी अच्छा लिहाज अली, ये भी बताइएगा कि अमूमी तौर पर सिक्योरिटी के इंतजामात किए जाते हैं पोलियो वर्कर्स के साथ, लेकिन ये चूंकि कन्विंसिंग मुहिम थी इसलिए क्या इंतजामात कम थे? जिस तरह आपने कहा, बुनियादी तौर पर इस वक्त खासदार और लीडीज के एहलकार जो है वो एहतजाज पर है। यही वजह होता है कि पोलियो कैंपेन जहाँ पर नहीं चलाई जाती उसके बाद जो लोकल फोर्सेज है उनको साथ मिलाकर कैंपेन चलाई जाती है, तो उसको कैचअप कैंपेन कहा जाता है। इसी कैचअप कैंपेन के दौरान ही वाजिद मोमन पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की। यूनियन काउंसिल बहुत बहुत शुक्रिया लिहाज अली आपका। लाहौर हाईकोर्ट में हमजा शहबाज की हिफाजती जमानत की दरखास्त पर समाअत शुरू हो गई है। कमराई अदालत में शोर पर बेंच ने कारकुनान को बाहर निकलने का हुक्म दे दिया। हमजा शहबाज ने अपनी जमानत की दरखास्त में नैब को फरीक बनाते हुए कहा है उन्हें नैब की जानिब से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है।
तहकीकात में ताउन के बावजूद वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने नैब टीम को पीर तक हमजा शहबाज की गिरफ्तारी से रोक दिया था, जिसके बाद नैब टीम मुसलसल दूसरे रोज भी हमजा शहबाज को रिहाइशगाह से गिरफ्तार किए बगैर वापस चली गई थी। आज लाहौर हाई कोर्ट में 10 रुकनी नैब टीम भी पेश हुई है, जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज के खिलाफ रिकॉर्ड पेश करेगी। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। नून लीग के कारकुनों को अदालत में जाने की इजाजत नहीं, लेकिन वकला की यूनिफॉर्म में दर्जनों कारकुन पहले ही अहाते में दाखिल हो गए थे। आपको बताएं कि हमजा शहबाज की गिरफ्तारी की सूरत में लाहौर पुलिस ने भी हिकमत अमली तैयार कर ली है। कार सरकार में मुदाखलत करने वाले कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी हवाले से मजीद भी बात करेंगे अपने नुमाइंदों से। जुबैर साजिद ढिल्लू और शुएब अली हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब अली, आप बताइएगा कि इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है? जी शहबाज की अबूरी जमानत पर दरखास्त पर कार्रवाई का आगाज हो चुका है। तो मुश्तमिल डिवीजन बेंच कमरा अदालत में मौजूद है। यहाँ पर आज लीगी कारकुनों और खवातीन की जानिब से काफी बदनज़मी देखने शुएब अली, आपसे दोबारा राब्ता कायम करेंगे। जुबैर साजिद ढिल्लू हमारे साथ मौजूद है। जुबैर, आप बताइएगा कि आज हमजा शहबाज की पेशी है, नैब भी पूरी तैयारी के साथ पहुंची है, क्या मनाजिर है वहां पर? जी बिल्कुल, देखें लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज की पूरी जमानत के केस का मामला है, तो इस वक्त समाअत जारी है। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान और जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ अदालत में जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अदालत में काफी ज्यादा शोर है, रश है। तो नून लीग की खवातीन की भी कमरा अदालत में मौजूद थी, कारकुन मेल व हजरात भी मौजूद थे। तो इससे जो है जस्टिस मलिक शहजाद अहमद हमजा के वकील ने इस्तफसार किया कि इतने रश में बात बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तो अदालत ने शोर करने वाले अफराद को बाहर निकालने का हुक्म दे दिया। इस हुक्म के बाद जो है लीगी कारकुनों के और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान जो है काफी तकरार जारी रहा। इसमें हमने देखा कि मुस्लिम नून की जो खवातीन है, जो मतवालियां हैं, उन्होंने अदालत के अंदर पुलिस के साथ जो है काफी बदनज़मी भी देखने के वाले से जो है साथ हुई। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अदालत का जो दरवाजा है वो बंद कर दिया गया है, अंदर समाअत जारी है और कोशिश की गई है कि ज्यादा से ज्यादा जो कारकुन अदालत के अंदर मौजूद थे उन्हें बाहर निकाल दिया जाए। तो लिहाजा पुलिस के साथ तकरार के बाद पुलिस ने कुछ कारकुनों को बाहर निकालकर, थोड़ा रश कम हुआ है तो अदालत का दरवाजा बंद कर दिया है। उसके बाद जो अदालत के बाहर के मनाजर ये है कि मुस्लिम नून के जो है एक कारकुनों की तादाद है जो कि वकला के यूनिफॉर्म पहने बाहर नारेबाजी भी कर रहे हैं। इस नारेबाजी के दौरान मलिक अहमद खान जो मुस्लिम नून के रहनुमा हैं, उन्होंने मना किया कि आप जो कारकुन है वो नारेबाजी नहीं करेंगे। तो इस तनाज़ुर में काफी सूरत हाल जो है डिफरेंट हुई। मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान है वो नारेबाजी कर रहे हैं, नारेबाजी रोक नहीं रहे। उसके साथ साथ पुलिस की भारी नफरी तैनात है। इसके साथ अगर देखा जाए तो जैसे ही हमजा शहबाज यहाँ पहुंचे तो काफी धक्कम-पेल का मुजाहरा हुआ। पुलिस सिक्योरिटी एहलकार जो है जो अदालत के बाहर तैनात थे, कमरा अदालत के बाहर, उनकी और मुस्लिम नून के कारकुनों के दरमियान काफी जो है धक्कम-पेल हुई। कारकुनों की कोशिश थी कि वो अंदर घुसने की कोशिश करें कमरा अदालत में, जबकि पुलिस को हिदायत जारी की गई थी कि किसी कारकुन को अंदर जाने नहीं दिया जाना। अब पुलिस के लिए मुश्किल था कि वो चेक करें कि ये कारकुन है और या फिर ये वकील है, क्योंकि कारकुन ज्यादातर जो है वकला का रूप धारे हुए जो है अंदर दाखिल हुए। उसके बाद जब दाखिल हुए तो अंदर कमरा अदालत में ये ऑर्डर जारी किया गया कि अदालत में जो है वो खामोशी इख्तियार की जाए। जज साहबान की जानिब से ऑर्डर जारी किया गया और साथ ये भी कहा गया कि जो एक्स्ट्रा लोग हैं, गैर जरूरी लोग हैं, उन्हें बाहर निकाला जाए। तो पुलिस ने फिर नून लीग के कारकुनों को जो है बाहर निकाला, बड़े कम लोग अंदर रह गए थे। उसके बाद जो है कमरा अदालत। ठीक है जुबैर साजिद ढिल्लू, आप हमारे साथ रहिएगा, आपसे हम तफसीलन अपडेट लेते रहेंगे। दोबारा चलेंगे शुएब अली से जो कि कोर्ट के अंदर मौजूद है। शुएब, बताइएगा अभी तक की समाअत का अहवाल क्या है? जी बिल्कुल, आपसे कुछ देर कबल लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मलिक शहजाद अहमद और मिर्जा वकास रऊफ पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने इस केस की समाअत शुरू की। ताहम जो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान और खवातीन कारकुनान थी, उनकी जानिब से काफी बदनज़मी देखने में आई, जिसके बाइस अदालत ने समाअत कुछ देर के लिए रोकने का हुक्म दिया। अदालत का इस हवाले से कहना था हमजा शहबाज के वकील से कि इतने रश में बात को समझना मुश्किल है। इसके अलावा अदालत ने शोर करने वाले अफराद को भी कमरा अदालत से बाहर निकालने का हुक्म दे दिया, जिस पर पुलिस की जानिब से कमरा अदालत का दरवाजा बंद कर दिया गया है। ताहम मजमूई जो सूरत हाल है अभी भी कंट्रोल में नहीं आ सकी और पुलिस कमरा अदालत में सिक्योरिटी के इंतजाम संभालने में नाकाम नजर आ रही है। अदालत ने इस मौके पर बरहमी का इजहार भी किया है और हमजा शहबाज के वकला को हदायत की है कि इन कारकुनान को चुप करवाया जाए और कमरा अदालत से बाहर निकाला जाए। इन कारकुनों को खामोश करवाना हमारा काम नहीं है।
जिसके बाद जो हमजा शहबाज के वकला है आजम नजीर तारड़ वगैरह, उनकी जानिब से भी कारकुनों से अपील की गई कि वो खामोशी इख्तियार करें और कमरा अदालत से बाहर चले जाएं। ताहम अभी इस पर बाकायदा समाअत का आगाज नहीं हो सका इस बदनज़मी के बायस। ठीक है, बहुत शुक्रिया शुएब अली आपका, जो कि कमरा अदालत के अंदर के मनाजिर हम तक पहुंचा रहे थे, जबकि जुबैर साजिद ढिल्लो कमरा अदालत के बाहर की तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दोनों शुक्रिया।